758 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सत्र में आपका स्वागत है। यह 758 लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का भी सत्र है और 758 ट्रूथ ऑन रिटर्न्स किताब का भी सत्र है। तीनों का एक ही लक्ष्य है कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट एक्ट पास हो। इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल मेलोडी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस्ड फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री बजट फंडामेंटल राइट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस्ड फंडामेंटल राइट, our constitutional life between 0 to 18 years and 18 to 58 years by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing fundamental right. There should be 3 budget system: annual budget, one ministry, railway budget, one ministry, and organized self-employed ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, and there should be 6 Rashtrapati Bhavan based on the Mandir document. First Rashtrapati Bhavan Shiv Puran, 12 Jyotir Mandir 175 crore Jyotir Mandir document. Second Rashtrapati Bhavan Vishnu Puran, Ramayana Bhagavad Gita Amit Puran, 12 Jyotir Mandir 175 crore Jyotir Mandir document. Rashtrapati Bhavan number 3 Brahma Saraswati Puran, ISBN Puran or Educational Certificate Puran. ISBN Truth on Returns, ISBN number is 8190186402 and copyright number is 954/03/COL and registration number is 1799. Rashtrapati Bhavan number 4 is Adi Shakti Jagdamba Durga Siddhi Bhavan, all Adi Shakti Jagdamba Mandir. Rashtrapati Bhavan number 5 is each United Vertical God and Goddess. In this all each United God and Goddess is taken. Rashtrapati Bhavan number 6 is Hindu government issue 15 August 1947 whatever law we have made, and on 31st August 2001 onward whatever law we have made for organized self-employed ministry are coming under this. So 6 Rashtrapati Bhavan is there, 6 Rashtrapati Bhavan of minorities based on the Mandir document. On that basis they are called parents of the organized self-employed, and on that basis there should be right of pension fundamental right of pension after 14 years for self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of its fundamental right, and we should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, and our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years. There should be employment equilibrium point. Employment equilibrium point is based on the basis of 40,000 per month above earning in cash and 40,000 per month below earning in cash, and 40,000 per month above earning in cash is 30% of the total population. In that 15% is government employee and 15% is private sector employee. Rest 70% people are below 40,000 per month earning, and in that employment unemployed people and irregular income people, illiterate, poverty line people, all are there. So problem lies in that. We should make organized self-employed ministry budget act. इसके अलावा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट निर्माण में 31 अगस्त 2001 से अपने कार्य को करते जा रही है। सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क, जनसंपर्क रैलियाँ, जनसंपर्क मिलन, हर प्रकार से लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। इसके तहत जो है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क कानूनी तौर पर संवैधानिक जनतांत्रिक माध्यम है जिसके ज़रिए प्रत्येक नागरिक को रोजगार आ जाता है। इसके तहत एक ऑफिस मिलता है और ऑफिस और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सचिवालय में जुड़ जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सचिवालय के जरिए एक ब्रांच में पोस्ट किया जाता है। अपने घर के पास ही वो ब्रांच होता है और हर एक 2 किलोमीटर पर वो ब्रांच होता है। एक ब्रांच में 365 सदस्य होते हैं और लीप ईयर में 366 सदस्य होते हैं। नागरिक का काम हुआ 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाकर कि हम इतना कमाते हैं, और फिजिकल क्रेडिट बेच दिया जाता है उस पर। फिजिकल क्रेडिट बेच हुआ कि सरकार जो विभिन्न तरह की कल्याणकारी नीतियाँ अपनाती है, इसके तहत इस नीति के तहत सीधा कल्याणकारी नीति कहते हैं इसको, डायरेक्ट वेलफेयर। इसके तहत ये सरकार मानती है जनतांत्रिक रूप से OSMB एक्ट के तहत कि हाँ इतना ये व्यक्ति कमा रहा है, और उस पर जो है चूँकि कैश उतना उपलब्ध नहीं है तो इस चीज़ को फिजिकल क्रेडिट रूप में मान लेती है, क्योंकि ये एक प्रकार से एक कैशलेस सोसाइटी की तरह ही हुआ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैशलेस सोसाइटी का निर्माण किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक में हमें मशीन की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें वैसा कुछ नहीं है। फिजिकल क्रेडिट बेच जो कि संवैधानिक दस्तावेज है, संवैधानिक तौर पर समझ में आना चाहिए कि इतना कमा रहे हैं, उस पर पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड या अन्य अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट सरकार की तरफ से OSMB एक्ट के तरफ से दे दिया जाता है, और प्रत्येक महीना 1000, 1200-1500 जमा होने लगता है। ऑटोमेटिक है कि इसका जो कार्यकाल होता है 14 + 14 + 12 रेंज में होता है, यानी कि 18, 32, 40, 58 पेंशन सेट होता है। तो उस कार्यकाल में
अगर 14 साल लगातार दिखाया और 12 साल लगातार दिखाया तो पेंशन सेट हो जाता है 18, 32, 40, 58% वही रकम में। और इसके अलावा इसमें डेवलपमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनाया गया है, जिसके तहत 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DL डिग्री प्राप्त करने पर व्यक्ति 40,000 से ऊपर प्रतिमाह कैश में आ जाता है, क्योंकि जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी है उसी से फिर पेंशन आता है और पेंशन रेगुलर कैश में आ जाता है, क्योंकि जो हमने प्रशासनिक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय प्रशासनिक जो सेवा करती है उसके तहत उसको उसमें परिवर्तित करती है और इसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट लगे रहते हैं और इसके ज़रिए इसमें जो है फिर लगातार कैश हो जाता है और वह 10 MA डिग्री करते करते 20 साल बीत जाते हैं, क्योंकि 2-2 साल पर एक MA कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिक 20 साल में 40,000 से ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए 40,000 से ऊपर जाने का भी रास्ता बनाया गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया तत्पर है। इसके अलावा यूनियन एग्रीकल्चर कमीशन ऑफ इंडिया भी बनाया गया है, जिसके तहत अगर 1360 स्क्वायर फीट का ज़मीन खेती करने के लिए देते हैं OSMB एग्रीकल्चर कमीशन को, तो इस पर 1500 रुपये सालाना रेंट मिलता है और फिर साल के अंत में इसको रिन्यू करवा सकते हैं, 5 साल के लिए भी दे सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द लैंड ओनर। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा कल्याण के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया कार्यरत है और यह एक्ट पारित हो इसके लिए कार्यरत है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के तहत ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी गई है और 401 रुपये किताब। इसके 6 खंड है, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में 6 राष्ट्रपति भवन है। कैलाश राष्ट्रपति भवन शिव पार्वती को लेकर है, बैकुंठ राष्ट्रपति भवन विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा विलासा राष्ट्रपति भवन को लेकर है, ब्रह्मलोक राष्ट्रपति भवन ब्रह्मा सरस्वती को लेकर जिसके तहत ISBN सर्टिफिकेट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट आते हैं और आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन आदिशक्ति जगदम्बा को लेकर है और किताब प्रत्येक पुरस्कृत राष्ट्रपति भवन जो है हिंदू गवर्नमेंट ट्रेजरी को लेकर है और जो है छठा राष्ट्रपति भवन हिंदू गवर्नमेंट जो हिंदू गवर्नमेंट ट्रेजरी को, 5वां राष्ट्रपति प्रत्येक पुरस्कृत भवन को लेकर। इस प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन है। तो ट्रूथ ओनली टर्म्स के भी 6 खंड है और 6 खंड 401 रुपये में उपलब्ध है, जिसको आप पार्सल भी मंगवा सकते हैं। मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 इंडिया से और यह घर पर पहुंच जाएगा। इस किताब को पढ़ें और अपने नित्य इसमें अपने विचारों को इसके साथ जोड़ें। ऑटोमेटिक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय निर्माण हो जाएगा। ये किताब इंग्लिश में है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए यूट्यूब पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया OSMBI चैनल है, जिसको सेशन 1 से लेकर 100 इंग्लिश में है, 101 से लेकर 200 हिंदी में है, 201 से लेकर 225 मैथिली में है, 226 से लेकर 300 इंग्लिश में है, 301 से लेकर 400 हिंदी में है, 401 से लेकर 500 मैथिली में है और 501 से लेकर 700 हिंदी में है, 701 से लेकर 900 इंग्लिश में है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जनसंपर्क पे निरंतर झुकी हुई है। इसको सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें और इसके साथ जो है सो गुड कमेंट दें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिना कुछ खर्च किए हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो जाए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का एनुअल फेस्टिवल जो है 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर साल में 4 बार मनाया जाता है, जिसके तहत सभी व्यक्ति जो इसमें रोजगार रखते हैं और फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाते हैं वह सब मूर्तियाँ बनवाते हैं 6 भैरव शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा सरस्वती आदिशक्ति जगदम्बा प्रत्येक वर्षिक हिंदू गवर्नमेंट सबके अवतार को लेकर और बेट के बेटा बेटी गणेश कंद कार्तिक हनुमान जी शुभ लाभ शुभ मृत्यु सफलता विजय प्रसिद्धि सबको लेकर और फिर प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता है, पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है, वर्ष की विधि पूजा किया जाता है और 10वां दिन फिर इसको विसर्जित करके नियर रिवर में विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसका ट्विटर में भी अकाउंट है जो कि है अमित कुमार 68022607, जिस पर स्टेटमेंट देखा जा सकता है और फिर इसका अपना ब्लॉग भी है जहां अमित कुमार 77.blogspot.com। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय आपसे कनेक्टेड है और जुड़ा हुआ है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है सो डेली आरती होती है अमित हेड ऑफिस में अमितेश्वर जहाँ अमित कुमार जय शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया। इनको रेडी फॉर 7407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 पर, जिसमें
कमरा नंबर 1 से 6 को राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 कहा जाता है। तो पहला राष्ट्रपति भवन है शिवपुराण राष्ट्रपति भवन, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ऑन लेटर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण है, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण है और सभी विष्णु लक्ष्मी अवतार है। 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ऑन लेटर। राष्ट्रपति भवन 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण है, ISBN पुराण है, यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट है। ISBN सर्टिफिकेट ट्रुथ ऑन रिटर्न्स का 8190186402 है और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL, रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799। तो इन सब दस्तावेज को लेकर ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन और सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट उसको लेकर प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ऑन लेटर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा है। आदिशक्ति जगदम्बा के तहत जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर है, दुर्गा शक्ति भागवत, ट्रुथ ऑन रिटर्न्स का आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, सभी का दस्तावेज लेकर प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ऑन रिटर्न्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक वर्ष की भवन होती है, जिसके तहत सभी देवी देवता, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरि, गोविंद, सूर्यकुमार, विष्णु, सभी देवी देवता को लेकर इसको बनाया गया है राष्ट्रपति भवन, और आने वाले भी जितने भी देवी देवता हैं सभी को। और इसके तहत जो है जो उनके ISBN सर्टिफिकेट यानी कि जो वर्ष की विधि है उनको ही आधार मंदिर माना जाता है और दस्तावेज रूप में रखा जाता है। और इस तरह से राष्ट्रपति भवन नंबर 6 5 की आरती, पुष्पांजलि, श्रृंगार, ट्रुथ ऑन लेटर। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट ईस्वी, इसके तहत 15 अगस्त 1947 जो भी कानून बनाया है, जिसके तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कानून नहीं था, यानी कि पर डे फिस्कल रेट बजट कानून नहीं था। रोजगारी में समस्या आई, फिर उस रोजगारी की समस्या के लिए फिर 6 राष्ट्रपति भवन हिंदू रूप में बनाया गया और अल्पसंख्यक रूप में एक राष्ट्रपति भवन, 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए। तो इस प्रकार से उन दस्तावेजों को लेकर और साथ साथ 31 अगस्त 2001 से जो भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत कानून बनाए उन सब को लेकर ये बनाया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। तो पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ऑन लेटर। इसके अलावा इसका ध्वज भी है। ध्वज है उजला कपड़ा। उजला कपड़ा में 12 चिन्ह है 12 राष्ट्रपति भवन के। तो पहला चिन्ह है त्रिशूल, मांग में सिंदूर, जो शिव पार्वती वेल के पावर के दृष्टिगोचर है। दूसरा है चक्र, मांग में सिंदूर, जो विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा, अमिताभ, राजा का दृष्टिगोचर। तीसरा है कमंडल, मांग में सिंदूर, जो ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन का दृष्टिगोचर है। चौथा है त्रिनेत्र, मांग में सिंदूर, जो आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर। पांचवा है प्रत्येक 100 वर्ष की भवन भगवती, मांग में सिंदूर, जो कि प्रत्येक 100 वर्ष की भवन भगवती का दृष्टिगोचर है। और छठा है गवर्नमेंट स्टैम्प, मांग में सिंदूर, जो हिंदू गवर्नमेंट तीसरी का दृष्टिगोचर है। पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ऑन लेटर और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण के लिए सदैव ये रास्ता दिखाते रहता है। और 6 और चिन्ह हैं जो कि माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन के हैं, जो कि माइनॉरिटी मंदिर के हिसाब से बनाए गए हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो फिजिकल क्रेडिट वेज हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि आजकल कैशलेस सोसाइटी का ज़माना है। तो कैशलेस सोसाइटी में कैश के बगैर सारे पेमेंट विदाउट कैश ही किए जाते हैं। तो वहाँ पर जो है संवैधानिक रूप से इस तरह की व्यवस्था की गई। अब इसी चीज़ को यहाँ पर भी संवैधानिक रूप से व्यवस्था की गई है, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के तहत। तो दस्तावेज के ज़रिए ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल है, इसके ज़रिए एक कैशलेस सोसाइटी की स्थापना हो जाती है, जो कि पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज को आंक लेता है। मतलब सरकार जो खर्च कर रही है इधर उधर कल्याणकारी नीति में, उसको एक जगह समेट लेता है सीधा मंत्रालय संपर्क में, और उसके तहत जो है हमें संवैधानिक मान्यता आय काम पर देता है और ये मान लेता है कि हम जो है इतना कमाते हैं। तो जैसे ही ये मान लेता है और वो असेंबली एक्ट पारित होता है तो उस पर उतने निश्चित रकम बन जाते हैं एक व्यक्ति के हाईएस्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट से, और वो जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट हाईएस्ट हुआ उस पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज सेट हो जाता है और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी हो जाता है। अब ये 3100 दिन वो मिलते हैं और साथ साथ एक असाइनमेंट वर्क दिया जाता है जो कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल काम हो और उस काम को कंप्लीट करने का फ्लेक्सिबल हुआ 7 दिन का वो काम होता है जो 2-3 दिन में भी कंप्लीट किया जा सकता है। बाकी समय व्यक्ति फ्री रहा। पैसा हर महीना पेंशन, ग्रेजुटी, प्रॉब्लम फंड, डियरनेस अलाउंस जमा हुआ। अच्छा, पैसे कहाँ से आए? तो वैसे ही आए जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट, 28 स्टेट एनुअल बजट, 8 यूनियन टेरिटरी का एनुअल बजट का जैसे आता है, ठीक वैसे ही पैसे ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के लिए और जो है 28 स्टेट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के लिए और 8 यूनियन टेरिटरी ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के लिए आ गया। और इसे जैसे ही आने लगे पेंशन, ग्रेजुटी, प्रॉविडेंट फंड, डियन जमा हुए 18, 32, 40, 58 पेंशन बन गया और एक रेगुलर सेटअप हो गया। अच्छा, 40,000 से ऊपर जाने का भी व्यवस्था हो गया क्योंकि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी 40,000 से ऊपर जाने के लिए 10 MA डिग्री करने के लिए
अग्रसर करती है और इसको करने में 20 साल लग जाते हैं। उसके बाद जो ब्रेन तैयार होता है वो संविधान और सरकार और प्रत्येक नागरिक के लिए फ़ायदेकारी होता है। इस प्रकार से इसमें डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए यह व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय अधिनियम एक्ट 2001 शारदापुर को पारित करना चाहिए भारतीय संसद भवन में और भारतीय विधानसभाओं में, और लेबर पार्टी का साथ देके इसको पारित करवावें।